Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and revised your previous lesson. Today we are going to start our second chapter, which is operating system Windows 11. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 11 के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक इंटरफेस है जिसकी मदद से जो यूजर कमांड्स देते हैं हमारे कंप्यूटर को, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टडी द चैप्टर इन डिटेल. So the name of our chapter is Operating System Windows 11. In this we are going to cover topics like operating system, components of Windows 11 and working on the desktop screen. So in this, first we have one warm-up activity which says look at the picture and label the parts of the computer and color them. First we are going to label. The first picture is of a speaker. Second is monitor. Third one is of a CPU. This is a printer. This is headphones, keyboard, and a mouse. You are going to color them on your own. Now, we already know that Windows is the most widely used operating system that runs on a computer. In this chapter, we will learn about Windows 11 and its functioning. Now, operating system क्या है? An operating system is a software that enables computer to understand commands given by user. Operating system works as an interface between computer hardware and a user. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ये एक इंटरफेस है बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अ यूजर. कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स. तो ये क्या है? ये कॉमनली यूज्ड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. There is a fact corner which says Bill Gates and Paul Allen founded Microsoft and Windows operating system in 1975. Now, what are Windows 11? Windows 11 is the latest version Windows operating system that was released on January 2022. It was introduced as a successor to Windows 10, featuring a redesigned user interface with centered taskbar icons, rounded corners, and a more streamlined start menu. तो बेसिकली विंडोज 11 क्या है? ये हमारी लेटेस्ट जो विंडो है, ये हमारा लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये बेसिकली सक्सेसर है ऑफ विंडोज 10, जिसको हमने रीडिजाइन करा है. एक अच्छा यूजर इंटरफेस जो हमें एक सेंटर्ड टास्क बार प्रोवाइड कराता है, राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आइकन्स प्रोवाइड कराता है और मोर स्ट्रीमलाइंड हमें एक स्टार्ट मेन्यू देता है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 11? On the desktop screen we will see the following items. तो ये हमारे क्या है? फॉलोइंग आइटम्स हैं जिसमें हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं, डेस्कटॉप, टास्क बार एंड अ स्टार्ट मेन्यू. Now what is a desktop? When we switch on a computer, Windows start automatically. The first screen that appears with the labeled picture on it is called the desktop. तो जब हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जो पहली स्क्रीन हमें दिखती है विद लेबलिंग्स, वो होती है डेस्कटॉप. टास्क बार क्या है? टास्क बार is a long horizontal bar at the bottom of the desktop. It allows us to locate and launch programs through the start menu. On the right side of the taskbar is the notification area that allows you to check the date and time and items running in the background. तो बेसिकली क्या होगा कि जो टास्क बार होता है, ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम में होता है. ये हमें अलाउ करता है टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम्स थ्रू स्टार्ट मेन्यू. ये राइट साइड ऑफ द टास्क बार पे हमारे नोटिफिकेशन एरिया होता है जो हमें अलाउ करता है डेट और टाइम चेक करने के लिए या फिर जो भी हमारे बैकग्राउंड में रन हो रहा है. द शो डेस्कटॉप button is present on the extreme right of the taskbar. Click on this button to minimize the open document and view the desktop. What is the start menu? In Windows 11, the start menu contains the four parts. Search box. This box is located across the top of the start menu. Type what you are searching for into the search box and Windows will try to find it whether it's on your PC or on internet. तो देखो, स्टार्ट मेन्यू में सबसे पहले हमें एक सर्च बॉक्स मिल जाता है जिसमें हम जो भी सर्च करेंगे वो हमारी विंडोज ट्राई करेगी वो हमारे को रिजल्ट देने की, चाहे वो हमारे पीसी में हो या उसको इंटरनेट से वो हमें देना पड़े. देन अनदर इज पिन्ड.
विंडोज डिस्प्ले अ सिलेक्टिव लिस्ट ऑफ पिन्ड एप्स इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर विंडो हमें कुछ पिन्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो रिकमेंड करती है। नाउ रिकमेंडेड, here windows list your recently opened files whether they be document, photo और video। तो recommended के अंदर हमारी recently opened files हमें मिल जाती हैं। यूजर अकाउंट नेम एंड पावर में क्या होता है, द स्टार्ट मेन्यू बॉटम सेक्शन लिस्ट योर यूजर अकाउंट नेम, अपोजिट द नेम द पावर बटन अवेट्स, क्लिक इट टू पुट योर कंप्यूटर टू स्लीप, रीस्टार्ट और शट इट डाउन फॉर द डे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक पावर बटन मिल जाता है जो हमें अवेट करता है कि हम वहां से अपने पीसी को स्लीप पे डाल सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर डे। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, we use file explorer to manage our files and folders. To open file explorer, click the file explorer icon on the taskbar or double click any folder on the desktop. तो फाइल एक्सप्लोरर को यूज करने के लिए हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर आइकन पे क्लिक करके टास्क बार पे से, या फिर हम अपने फोल्डर पे डबल क्लिक कर सकते हैं ऑन द डेस्कटॉप। आइकन्स क्या होते हैं, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। व्हेन वी डबल एन आइकन, विंडो गेट्स ओपन और अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब भी हम अपने आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो पे वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकन्स आर दिस पीसी, रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे वर्किंग कैसे करते हैं, ओपनिंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स कैसे ओपन होंगे, डबल क्लिक ऑन द आइकन दैट वी डिजायर टू ओपन। हमें उस आइकन पे डबल क्लिक करना है जिसे हमें ओपन करना है, और राइट क्लिक ऑन द आइकन, सेलेक्ट शो मोर ऑप्शंस। हम अपने आइकन पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, जहां से हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द एप्लीकेशन विंडो विल ओपन लाइक दिस। हम यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अरेंजिंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, अपने आइकन्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। एज वी अरेंज आवर स्टडी डेस्क टू मेक इट टाइडी, लाइकवाइज वी कैन ऑल्सो अरेंज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट अ बेटर लुक। टू डू दिस, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया, अ मेन्यू विल अपीयर। हम अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, हमें एक मेन्यू मिलेगा। देन इन स्टेप 2, क्लिक ऑन व्यू बटन, अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। यहां से हम व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉपअप मेन्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। देन इन स्टेप 3, क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकन्स। यहां से हमें क्या करना है, ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करना है। ऑल द आइकन्स विल बी अरेंज्ड ऑन द डेस्कटॉप, और हमारे डेस्कटॉप पे जो आइकन्स है वो अरेंज हो जाएंगे। सॉर्टिंग द आइकन्स, we can arrange icons in alphabetic order on the desktop. To do this, follow the given steps. Step 1, right click on the desktop area, a menu will appear. Step 2, point to the sort by option, a pop-up menu appears. हमें यहाँ पे क्या करना है, sort by option पे क्लिक करना है। अगेन हमें क्या मिलेगा, एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पे मिल जाएगा। देन इन स्टेप 3, क्लिक ऑन द नेम सब ऑप्शन, ऑल द आइकन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ से हम नेम सब ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो जो आइकन्स हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। सेटिंग वॉलपेपर, वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हैं, वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस इन द फॉलोइंग वे। टू डू दिस, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड अ मेन्यू विल अपीयर। क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन। हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे, एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां से अब की बार हमें पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज करना है। देन इन स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द वॉलपेपर फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शंस। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद में जो डिस्प्ले ऑप्शंस है वहां से हमें अपने लिए एक बैकग्राउंड चूज करना है। इन स्टेप 4, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द विंडो। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्लोज करने के बाद में जो सिलेक्टेड हमारा इमेज थी या जो भी फिगर थी वो हमारे बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी। सो दिस वाज योर चैप्टर, लेट्स क्विकली रैप अप इट। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड इट्स यूजर्स। विंडोज इज अ पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है, ग्राफिकली यूजर इंटरबेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं।
Desktop is the final screen that appears after switching on the computer. Desktop क्या है? वो final screen है जो हमारे कंप्यूटर पे स्विच ऑन होने के बाद में आती है. Start menu is located at the center of the desktop. Start menu हमारे desktop के center पे locate होता है. We can do basic operations on the desktop like opening desktop icons, मूविंग डेस्कटॉप आइकन्स एंड सेटिंग वॉलपेपर एटसेट्रा. हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, लाइक अपने डेस्कटॉप आइकन्स को ओपन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और वॉलपेपर सेटिंग भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. What acts as a stage on which software application can run? So it is our OS, which is operating system. Which one is not an operating system? Windows, Linux, LAN. So LAN is not an operating system. The bar at the bottom of the desktop is known as taskbar. The small picture present on the desktop are called icons. Second question is fill in the blanks using given words. Dash is a software program that controls the overall activities of a computer. So it is a operating system. Dash menus list all the installed programs in a computer. Start menu. Dash is the first screen that appears after switching on the computer desktop. Double clicking on the icon is known as opening desktop icons. Next question is true false. The search box is present on the right corner of the desktop. क्या जो search box होता है वो हमारे desktop के right corner पे present होता है? No, it is false. Windows 11 is a GUI based software. True. File Explorer manages the files and folders. True. We cannot arrange the icons on the desktop. False. Because हम अपने icons को अपनी requirement के accordingly arrange कर सकते हैं. So students, this was your chapter. I hope the chapter is clear to you about operating system as well as Windows 11. Do revise it and do practice the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.